Hello everyone. Today we're going to try to understand what legislative material is and what it means. As per Black's Law Dictionary, legislative material refers to any document or information that is related to the legislative process, including bills, committee reports, debates, and other materials used in the creation of laws. Legislative material, introduction. Legislative materials are the various acts passed by the Parliament and the state legislatures and include ordinances, rules, regulations, orders and notifications issued by the government and published in the Government Gazette. An act usually consists of the following different parts. 1. Short title. This is the title by which the act is generally known. It occurs in two places, I, at the top of the act, and EI, in the section of the act. 2. Official citation. Every act passed in a year given its individual number and the calendar year in which it was passed. It is a shortened form of the act and occurs usually in round brackets. Thus, the official citation of the Protection of Human Rights Act, 1993 is number 10 of 1994. 3. Date of assent. The date on which the act received the assent of the President occurring within square brackets. Thus, the date of assent of the Protection of Human Rights Act, 1993 is the 8th of January 1994. 4. Long title. It sets out the purpose of the act. Each act is enacted with a specific purpose and this is contained in the long title. Thus, the long title of the Protection of Human Rights Act, 1993 is, an act to provide matters connected therewith or incidental thereto. 5. Preamble. The purpose of the preamble, when incorporated in the act, is to specify the reasons for the proposed legislation and also the expected effects of the legislation. 6. Enacting formula. It summarizes the legislative authority of the Parliament and usually precedes the first section of the Act. Thus, the enacting formula of the Protection of Human Rights Act is, be it enacted by Parliament in the 44th year of the Republic of India. 7. Sections. An act is divided into numbered parts called sections. Sections may be divided into subsections, subsections into paragraphs and paragraphs into sub-paragraphs. 8. Marginal notes. Each section has a descriptive title called side note or marginal note. 9. Date of commencement. This is the date when the act is to come into force. Sometimes a specific date is named, and sometimes the power to set a date for commencement is delegated to the government. Thus, the date of commencement of the Protection of Human Rights Act is deemed to be the 28th day September, 1993. 10. Schedules or tables. These, if included, are found at the end of the Act. In addition to the above different parts of an Act, the intention of the legislature in enacting the Act, known as legislative intent, is the Statement of Objects and Reasons which is published in the Official Gazette. Legislative materials are documents related to the lawmaking process, including proposed legislation, inquiries, and responses. They can be used to interpret legislation, understand the intentions of legislators, and more. Examples of legislative materials proposed or pending legislation. Inquiries submitted by Congress to federal agencies, agency responses to congressional inquiries, explanatory statements, and parliamentary debate records. Legislative refers to the process of making laws, relating to a legislative body or the actions of lawmakers, while material refers to physical substances or tangible things. Essentially the content or subject matter of a law, not the process of creating it. So, legislative is about the act of lawmaking, while material is about the substance of the law itself. Thank you.
सभी को नमस्कार। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि विधायी सामग्री क्या है और इसका क्या अर्थ है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार विधायी सामग्री किसी भी दस्तावेज या सूचना को संदर्भित करती है जो विधायी प्रक्रिया से संबंधित है, जिसमें बिल, समिति की रिपोर्ट, बहस और कानून बनाने में उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्री शामिल है। विधायी सामग्री परिचय। विधायी सामग्री संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विभिन्न अधिनियम हैं और इसमें अध्यादेश शामिल हैं। सरकार द्वारा जारी किए गए नियम, विनियम, आदेश और अधिसूचनाएं और सरकारी राजपत्र में प्रकाशित। एक अधिनियम में आमतौर पर निम्नलिखित विभिन्न भाग होते हैं। 1. संक्षिप्त शीर्षक। यह वह शीर्षक है जिसके द्वारा अधिनियम को आमतौर पर जाना जाता है। ये दो स्थानों पर होता है, आई अधिनियम के शीर्ष पर और ई अधिनियम की धारा में। 2. आधिकारिक उद्धरण। प्रत्येक अधिनियम 1 वर्ष में पारित होता है, जिसमें उसकी व्यक्तिगत संख्या और कैलेंडर वर्ष दिया जाता है जिसमें इसे पारित किया गया था। यह अधिनियम का संक्षिप्त रूप है और आमतौर पर गोल कोष्ठकों में होता है। इस प्रकार मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का आधिकारिक उद्धरण 1994 का क्रमांक 10 है। 3. स्वीकृति की तिथि। अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने की तिथि वर्गाकार कोष्ठकों में दी गई है। इस प्रकार मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की स्वीकृति की तिथि 8 जनवरी 1994 है। 4. दीर्घ शीर्षक। यह अधिनियम के उद्देश्य को निर्धारित करता है। प्रत्येक अधिनियम एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया जाता है और ये दीर्घ शीर्षक में निहित होता है। इस प्रकार मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का दीर्घ शीर्षक इससे संबंधित या इसके आनुषंगिक मामलों को प्रदान करने के लिए एक अधिनियम है। 5. प्रस्तावना। अधिनियम में शामिल किए जाने पर प्रस्तावना का उद्देश्य प्रस्तावित कानून के कारणों और कानून के अपेक्षित प्रभावों को निर्दिष्ट करना है। 6. अधिनियमन सूत्र। ये संसद के विधायी अधिकार का सारांश प्रस्तुत करता है और आमतौर पर अधिनियम के पहले खंड से पहले आता है। इस प्रकार मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम का अधिनियमन सूत्र है। भारत गणराज्य के 40वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया जाए। 7. धाराएं। एक अधिनियम को क्रमांकित भागों में विभाजित किया जाता है जिन्हें धाराएं कहते हैं। धाराओं को उपधाराओं में, उपधाराओं को अनुच्छेदों में और अनुच्छेदों को उप अनुच्छेदों में विभाजित किया जा सकता है। 8. सीमांत टिप्पणियां। प्रत्येक धारा का एक वर्णनात्मक शीर्षक होता है जिसे साइड नोट या सीमांत टिप्पणी कहा जाता है। 9. प्रारंभ की तिथि। यह वह तिथि है जब अधिनियम लागू होना है। कभी कभी एक विशिष्ट तिथि का नाम दिया जाता है और कभी कभी प्रारंभ की तिथि निर्धारित करने की शक्ति सरकार को सौंपी जाती है। इस प्रकार मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के लागू होने की तिथि 28 सितंबर 1993 मानी जाती है। 10. अनुसूचियां या तालिकाएं। यदि इन्हें शामिल किया जाता है तो ये अधिनियम के अंत में पाई जाती हैं। किसी अधिनियम के उपरोक्त विभिन्न भागों के अतिरिक्त अधिनियम को अधिनियमित करने में विधायिका का इरादा, जिसे विधायी इरादा के रूप में जाना जाता है, उद्देश्यों और कारणों का कथन है जिसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। विधायी सामग्री कानून बनाने की प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेज हैं जिसमें प्रस्तावित कानून, पूछताछ और प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। इनका उपयोग कानून की व्याख्या करने, विधायकों के इरादों को समझने और बहुत कुछ करने के लिए किया जा सकता है। विधायी सामग्री के उदाहरण प्रस्तावित या लंबित कानून, कांग्रेस द्वारा संघीय एजेंसियों को प्रस्तुत पूछताछ,
कांग्रेस की पूछताछ के लिए एजेंसी की प्रतिक्रियाएं। व्याख्यात्मक कथन और संसदीय बहस के रिकॉर्ड। विधायी का तात्पर्य विधायी निकाय या विधिनिर्माताओं के कार्यों से संबंधित कानून बनाने की प्रक्रिया से है, जबकि भौतिक का तात्पर्य भौतिक पदार्थों या मूर्त चीजों से है, जो अनिवार्य रूप से कानून की सामग्री या विषय वस्तु है, न कि इसे बनाने की प्रक्रिया। इसलिए विधायी कानून बनाने के कार्य के बारे में है, जबकि भौतिक कानून के सार के बारे में है। धन्यवाद। अस्सलामुअलैकुम। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कानून साजी का मवाद क्या है और इसका क्या मतलब है। ब्लीक के कानून डिक्शनरी के मुताबिक कानून साजी का मवाद किसी भी दस्तावेज या मालूमात से मुराद है जो कानून साजी के अमल से मुताल्लिक है, बशमूल बल, कमेटी की रिपोर्ट्स, मुबाहसे और कवानीन की तख्लीक में इस्तेमाल होने वाले दीगर मवाद। कानून साजी का मवाद। तारुफ। कानून साजी का मवाद पार्लियामेंट और रियासती मुकन्निना के जरिए मंजूर करदा मुख्तलिफ एक्ट है और इनमें ऑर्डिनेंस शामिल हैं। हुकूमत की तरफ से जारी करदा और सरकारी गुज़ट में शाये होने वाले कवायद, ज़वाबित, अहकामात और नोटिफिकेशन। एक अमल आम तौर पर दर्ज झेल मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक मुख्तसर उन्वान, ये वो उन्वान है जिससे एक्ट आमतौर पर जाना जाता है। ये दो जगहों पर होता है, आई एक्ट के ऊपरी हिस्से में और ई एक्ट के सेक्शन में। 2. सरकारी हवाला। हर एक्ट एक साल में इसके इनफरादी नंबर और कैलेंडर साल जिसमें उसे मंजूर किया गया था। ये एक्ट की एक मुख्तसर शक्ल है और आमतौर पर गोल ब्रैकेट में होती है। इस तरह प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 का बाज़ाब्ता हवाला है नंबर 10 का 1994। 3. मंजूरी की तारीख, वो तारीख जिस पर एक्ट को मुरब्बा ब्रैकेट में सदर की मंजूरी हासिल हुई। इस तरह प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 की मंजूरी की तारीख 8 जनवरी 1994 है। 4. तवील उन्वान। ये एक्ट का मकसद मुतय्यन करता है। हर एक्ट एक खास मकसद के साथ नाफिज किया गया है और ये तवील उन्वान में मौजूद है। इस तरह प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 का तवील उन्वान इससे मुंसलिक या इससे मुतालिका मामलात फराहम करने के लिए एक एक्ट है। 5. तमहीद। तमहीद का मकसद जब एक्ट में शामिल किया जाता है मुजवजा कानून साजी की वजूहात और कानून साजी के मुतवक्के असरात को भी बयान करना है। 6. फार्मूला नाफिज करना। ये पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार का खुलासा करता है और आमतौर पर एक्ट के पहले हिस्से से पहले होता है। इस तरह प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट का नाफिज करने वाला फार्मूला है, चाहे उसे जमहूरिया हिंद के 48वें साल में पार्लियामेंट ने नाफिज किया हो। 7. हिस्से। एक एक्ट नंबर वाले हिस्सों में तकसीम होता है जिसे सेक्शन कहते हैं। हिस्सों को ज़ैली हिस्सों में, ज़ैली हिस्सों को पैराग्राफ में और पैराग्राफ को ज़ैली पैराग्राफ में तकसीम किया जा सकता है। 8. मामूली नोटिस। हर सेक्शन का एक वजाहती उन्वान होता है जिसे साइड नोट या मार्जिनल नोट कहा जाता है। 9. आगाज की तारीख। ये वो तारीख है जब एक्ट नाफिज होने वाला है। कभी किसी मखसूस तारीख का नाम दिया जाता है और कभी आगाज के लिए तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार हुकूमत को सौंप दिया जाता है। इस तरह प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के आगाज की तारीख 28 सितंबर 1993 तस्वुर की जाती है। 10. निज़ाम अलावकात या मेज़े। ये अगर शामिल हैं एक्ट के आखिर में पाए जाते हैं।
एक्ट के मुंदरजा बाला मुख्तलिफ हिस्सों के अलावा एक्ट को नाफिज करने में मुकन्निना का इरादा, जिसे कानून साजी का इरादा कहा जाता है, अशिया और वजूहात का बयान है जो सरकारी गज़ट में शाये होता है। कानून साजी का मवाद कानून साजी के अमल से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात है, बशमूल मुजवज़ा कानून साजी, पूछगछ और जवाबात। उनका इस्तेमाल कानून साजी की तशरीह, कानून साजों के इरादों को समझने और मज़ीद बहुत कुछ करने के लिए किया जा सकता है। मुजवज़ा या ज़ेर उलतवा कानून साजी के मवाद की मिसालें कांग्रेस की तरफ से वफाकी एजेंसियों को जुमा कराई गई इंक्वायरियां, कांग्रेसी इंक्वायरियों पर एजेंसी के जवाबात, वजाहती बयानात और पार्लिमानी बहस के रिकॉर्ड। कानून साजी से मुराद कानून साजी के अमल, कानून साज इदारे या कानून साजों के अमाल से मुताल्लिक़ है, जबकि मादी से मुराद जिस्मानी मादा या ठोस चीज़ें हैं। बुनियादी तौर पर किसी कानून का मवाद या मौजू, न कि उसे बनाने का अमल, लिहाजा कानून साजी के अमल के बारे में है, जबकि मादी खुद कानून साजी के अमल के बारे में है। शुक्रिया। Hello everyone. Today we're going to try to understand what legislative material is and what it means. As per Black's Law Dictionary, legislative material refers to any document or information that is related to the legislative process, including bills, committee reports, debates, and other materials used in the creation of laws. Legislative material. Introduction. Legislative materials are the various acts passed by the Parliament and the state legislatures and include ordinances, rules, regulations, orders and notifications issued by the government and published in the Government Gazette. An act Thanks very usually much. consists